Good morning, students. Today, once again, I am here in front of you. I am explaining a new topic, and the topic is post fertilization events. Okay, in this topic, we will discuss what happens in the angiospermic plants after the process of fertilization. So, I am recalling a little bit that yesterday we discussed about fertilization, and you studied that how out of these two male gamete, one gamete fuses with the egg cell and forms zygote, and the another male gamete fuses with uh, two polar nuclei and forms endosperm, or initially it converts into pen or PEC. So right now we are going to discuss that what happens in the post fertilization events, what happens with the zygote, and what happens with the PEN or PEC. Is it clear? So I am coming to the topic. So here we are discussing the topic post fertilization structure and events. So actually when the ovule gets fertilized, it converts into zygote, and zygote develops into embryo, and embryo finally develops into seed. So this is the first thing. After syngamy, here I am writing syngamy. After syngamy, what happens? The egg gets fertilized, or fertilized ovule converts into zygote, zygote converts into embryo, and embryo develops into the seed. Tick, this is the first thing. And the second thing we discussed that after triple fusion, what happens in the triple fusion I discussed earlier. One male gamete fuses with two polar nuclei and forms a triploid nucleus which is called as pen. Is it clear? And this one cell develops into PEC. This develops into PEC. Is it clear? This was the yesterday's topic, and once again I am recalling you why. There is a reason behind it. So actually what happens when the pen forms, means a triploid nucleus forms. These three nucleus will fuse together and form a single nucleus. This will be triploid. Its ploidy will be 3n, because 1n from here, 1n from here, 1n from here, triploid, 3n are here. So the ploidy is triploid. So actually what happens, I'm going to tell you that now we are discussing how the endosperm formation takes place. This endosperm, actually what happens when triploid endospermic nucleus forms, then it starts माइटोटिकली. इसमें माइटोटिक डिवीजन होना स्टार्ट होता है, यानी कि ये लगातार रैपिडली जो आपका ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस होता है ये लगातार डिवीजन करता है, ठीक है. एंड इट मेक्स वेरियस और सेवरल फ्री न्यूक्लियाई, कई सारे न्यूक्लियस बना देता है, एंड सबकी प्लॉइडी 3n होती है. एंड दीज न्यूक्लियसेस आर कॉल्ड फ्री न्यूक्लियाई. इनको फ्री न्यूक्लियाई कहने के पीछे रीजन ये है बिकॉज when the division starts, only the ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस डिवाइड्स फर्स्टली. यानी पहले केवल क्या होता है कि जो आपका ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस होता है वही डिवाइड करता है, और इस तरह से कई सारे क्या बना देता है, फ्री न्यूक्लियाई बना देता है. एंड लेटर ऑन आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपेंस, सेल वॉल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. फिर जाकर के कहीं सेल वॉल फॉर्मेशन होती है, और सेल वॉल फॉर्मेशन होने के बाद सेल्यूलर एंडोस्पर्म बनना स्टार्ट होता है. और दोनों के मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ. आपने कोकोनट वाटर पिया होगा. जो कोकोनट वाटर होता है, कोकोनट वाटर में जो पानी हम पी रहे हैं, नारियल पानी जो हम पी रहे हैं, कोकोनट वाटर जो है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ फ्री न्यूक्लियाई एंडोस्पर्म. ठीक है, हेयर आई हैव रिटन फ्री. जो वाटर है इसका ये फ्री न्यूक्लियाई है. एंड जो वाइट कर्नल पार्ट होता है उसका, वो उसकी सेलुलर स्टेट होती है. जो आपने देखा होगा ना, नारियल का बाहर फिर वाइट कलर का एक कर्नल होता है, तो दिस कर्नल इज कॉल्ड एज, दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ सेलुलर एंडोस्पर्म. ना अभी एंडोस्पर्म बनता क्यों है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, ये रीजन की क्या ज़रूरत है. दिस एंडोस्पर्म की जो सेल्स होती हैं बेटा, दीज आर वेरी हाई और रिच इन न्यूट्रिएंट्स. तो इसमें रिच न्यूट्रिएंट होने की वजह से क्या होता है कि ये जो बाद में ये जो एम्ब्रियो बन रहा होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस के टाइम पे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो इस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है. क्लियर? सो दिस वॉज द ऑल अबाउट एम्ब्रियो. एंड वन मोर थिंग, द एंडोस्पर्म फॉर्मेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो. यानी एम्ब्रियो बनने से पहले हमेशा क्या होता है, एंडोस्पर्म बनता है, ताकि थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म होगा जिससे कि जाइगोट को एम्ब्रियो बनते समय या एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होते समय क्या मिल पाए, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल पाए. इज इट क्लियर? नाउ आई एम गिविंग यू सम अदर एग्जांपल्स ऑफ एंडोस्पर्म. हैव यू एवर सीन द एंडोस्पर्म ऑफ एनी सीरियल प्लांट्स? राइस को देखोगे तो राइस के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, एंडोस्पर्म. सिमिलरली आई एम गिविंग यू वेरी कॉमन एग्जांपल. इफ यू विल सी द सीड ऑफ मेज, मक्के का बीज अगर आप देखेंगे
तो उसके व्हाइट कलर के कवर को अगर आप तोड़ेंगे तो एक येलो इस पाउडर सा जो निकलता है, दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ एंडोस्पर्म, ठीक है। एंड इन सर्टेन सीड्स इट इज़ कंज्यूम्ड कम्प्लीटली, लाइक पी है, ठीक है, ग्राम है, अगर इसको आप तोड़ेंगे, अगर आप देखेंगे तो इसका जो एंडोस्पर्म होता है तो एम्ब्रियोजेनेसिस के टाइम पे कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाता है। वहीं जैसे कैस्टर है, कैस्टर में जो ऑयल निकलता है, दिस सम इन सम केसेस इट परसिस्ट आफ्टर द एम्ब्रियोजेनेसिस और इट ऑल्सो हेल्प्स इन द सीड जर्मिनेशन प्रोसेस, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एंडोस्पर्म। नाउ द नेक्स्ट थिंग विच वी आर डिस्कसिंग एंड इट इज कॉल्ड एम्ब्रियो, ठीक है। नाउ हाउ द एम्ब्रियो फॉर्म्स, यू नो वेरी वेल दैट initially the fertilized after syngamy fertilized ovule converts into zygote and zygote converts into embryo and embryo finally develops into seed. Now since we know that there are two groups in the angiospermic plants, the first group is called dicot and the second group is called as मोनोकॉट। तो दोनों में सिमिलर क्या होता है, इनिशियल स्टेज पे तो सिमिलर होता है, यानी कि जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस होती है, वो सिमिलर होती है। एक्चुअली व्हाट हैपेंस, आई एम शोइंग अ डायग्राम फ्रॉम द बुक, हियर यू कैन सी दिस इज द जाइगोट। नाउ जाइगोट में मियोसिस माइटोसिस स्टार्ट हो रहा है, टू सेल्स आर फॉर्म। नाउ दिस जाइगोट इज गोइंग टू डेवलप, तो इसकी अलग अलग फॉर्म्स आती हैं, देखने को अभी यहाँ पर इसकी ग्लोबुलर फॉर्म आ गई, ये हार्ट शेप फॉर्म आ गई, ग्लोबुलर मतलब ग्लोब शेप फॉर्म आ गई, देन इट इज़ हार्ट शेप फॉर्म, और ये जो है फुल्ली मैच्योर्ड एम्ब्रियो है आपका। चाहे डाइकॉट हो चाहे मोनोकॉट हो, इन बोथ ऑफ द केसेस द एम्ब्रियो फॉर्मेशन टेक्स प्लेस सिमिलरली इन द इनिशियल स्टेजेस, क्लियर। नाउ हाउ द एम्ब्रियो फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन द dicot plant or how it forms in monocot plant, I am going to discuss very quickly. And here you are observing a diagram. Actually what happens, initially the zygote forms and the zygote form develops into an embryo, and this structure is very important for the view of your board examination also, because might be possible there will be a question for 3 marks for drawing the structure of dicot or monocot embryo. So I am starting very again आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ लिटिल बिट अमाउंट ऑफ द एंडोस्पर्म, क्योंकि एंडोस्पर्म थोड़ा बहुत ज़रूरी होता है स्टार्टिंग में। आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंडोस्पर्म, द डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट और मोनोकॉट एम्ब्रियो टेक्स प्लेस। ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो। वेरी क्विकली आई एम टेलिंग यू द व्हाट आर डिफरेंट फीचर्स। ये तो जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इनको तो बोलते हैं कॉटिलीडन्स, क्लियर। एंड ये जो लेवल है, ये जिस लेवल पे दोनों कॉटिलीडन्स अटैच हैं, इससे ऊपर का जो लेवल होता है इसको बोला जाता है एपीकॉटाइल, ठीक है। इन फ्यूचर इट विल डेवलप इनटू प्लूम्यूल। प्लूम्यूल आप समझते हैं ना, सूट सिस्टम में डेवलप होगा। एंड द लेवल ऑफ जस्ट बिलो द लेवल ऑफ द अटैचमेंट, द रीजन ऑफ द अटैचमेंट, इट इज कॉल्ड एज हाइपोकॉटाइल, ठीक है। एंड हाइपोकॉटाइल टर्मिनेट्स इनटू रेडिकल रीजन, फ्यूचर रूट, एंड दिस इज द लास्ट वन, रूट कैप। And there is one axis also. This axis is called as embryonal axis. Okay, it is not shown in the figure, but you must have to remember this axis is called as embryonal axis. तो embryonal axis पे आप देखेंगे this region is called epicotyle. These two are called cotyledons. ठीक है, and the region of the embryo below the level of the attachment, it is called as hypocotyle, which terminates into radicle, and finally it is covered. Radicle is covered with the root cap. This is the structure of डाइकॉट एम्ब्रियो, एंड दिस स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द व्यू ऑफ योर एग्जामिनेशन। नाउ अब डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो। ओके, मोनोकॉट एम्ब्रियो जो है बेसिकली मोनोकॉट, इसमें क्या होता है, सिंगल कॉटिलीडन होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सिंगल कॉटिलीडन। ये इसकी जो मैं डॉटेड बना रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो इफ़ यू विल ऑब्जर्व दैट इसमें एक ही कॉटिलीडन है, और ये कॉटिलीडन जो है इस एम्ब्रियोनल एक्सिस के लेटरल साइड पे प्रेजेंट है, ठीक है। इट इज अटैच्ड एट द लेटरल साइड, वन साइड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस, और इन द मोस्ट ऑफ द ग्रासेस ओनली सिंगल कॉटिलीडन इज प्रेजेंट, एंड दिस कॉटिलीडन इज इन केस ऑफ monocot plants only single cotyledon is there, and this cotyledon is called as scutellum.
दिस इज द स्पेलिंग, स्कूटेलम, ठीक है। द सिंगल कॉटिलिडन present in the monocot plant, it is known as scutellum. Okay, now if you will observe there, this is the level of the attachment. The region just above the level of attachment, it is called as, this region is called as coleptile. Sorry, O is missing, coleptile. Is it clear? This region is called coleptile, and the last one region, and here inside it you are observing shoot apex in the coleptile, shoot apex. Okay, clear? Okay, along with it, if you will observe there, there is one more region, and this region is called as col, this is called as coleo, colerhiza, RHIZA. This is called colerhiza, and this region is called radical region. ठीक है, radical is future root, and this is shoot apex, or coleptile is your future shoot system. Is it clear? And colerhiza encloses or covers the radical region. Is it clear? So this is all about monocot structure. Once again I am revising it. This is the monocot structure. It has only single cotyledon, and the cotyledon is called scutellum. ठीक है, and it mostly occurs in the grass plants. Clear? And this is the shoot apex region, and the level of the attachment, the region of the embryo just above the region of attachment, it is called coleptile. It contains shoot apex, and it terminates into radical region, and radical region is covered by a sheath of a tissue. This tissue is called as colerhiza. ठीक है, this is all about the structure of the embryo. Tomorrow we will discuss about the structure of seed. Thank you.